Good day everyone. Myself Tripti Mishra. Today I am going to discuss worksheet of EVS class 5th chapter number 4 mangoes round the year. Question number 1 is multiple choice questions in which you have to select the correct one answer out of given 4 answers. First question is, in which seasons does the food get spoiled easily? किस मौसम में फूड easily spoiled हो जाता है? So here the answers options given here are the winter, monsoon, summer and spring. So here as we know in the summers temperature is maximum high and that's why the food is get spoiled in the summers easily. So the correct answer is C, summer. Next is, what appears on moist bread when it is kept for a few days? कुछ दिनों तक अगर मॉइस्ट ब्रेड को रख दिया जाए तो उस पर क्या अपीयर होती है? सो इन द थ्योरी ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर दैट it will appear the fungus will appear on the moist bread when it is kept for a few days. The third question is, which of the following can be kept fresh by putting it in a bowl which is kept in a container with some water? So here the correct answer is cooked rice. We can keep the cooked rice fresh by putting it in a bowl which is kept, should be kept into a container with some water which will give it cooling effect. So the correct answer will be the cooked rice, B. Question number 4 is, which of the following can be kept fresh by wrapping it in a damp cloth? Damp cloth means गीला कपड़ा. तो गीले कपड़े में रैप करके हम किस चीज़ को फ्रेश रख सकते हैं? So the here it is cooked rice, green coriander, onion, garlic, all of these. So the correct answer is the green coriander. हरा धनिया जो पत्तेदार हरा धनिया आता है सब्जियों के साथ में हम लाते हैं, उसको अगर फ्रेश रखना है तो हम वहाँ ग्रीन कोरिएंडर को वी विल रैप इट इन ए डैम्प क्लॉथ. नेक्स्ट इज, हाउ मैनी वीक्स डज इट टेक टू प्रिपेयर मामिदी तांद्रा मीन्स आम पापड़? सो वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर इट टेक्स 4 weeks फॉर प्रिपेयरिंग मामिदी तांद्रा or aam papad. So correct answer is 4 weeks. B option is correct. Question number 6 is, how do we come to know that food has got spoiled? By its color. Yes, if the food is spoiled then its color will be changed. Sometimes fungus or some things appear on the food and sometimes its color is changed. By its taste, yes, its taste is going to be bad, it is bad taste. And by its smell, yes, it will give the foul smell. So the correct option will be D, all of these: by its color, by its taste and by its smell. So correct answer is all of these. Question number 2 is, fill in the blanks with appropriate words given in the box. बॉक्स में दिए गए अप्रोप्रिएट वर्ड्स को में से आपको वर्ड सेलेक्ट करने हैं और नीचे 2 फिलअप्स दिए हैं, इनमें भरने हैं. सो मैनी वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स: डस्ट, मसलिन, green coriander, cooked rice, onion, drying, sweetening and salting, milk, sprouts, mangoes, ripe, unripe, sugar, freeze or refrigerator. So the first fill up is, dash can be kept fresh by keeping it in a dry open place. So we should know that onion can be kept fresh by keeping it in a dry open place. ओनियन को हम एक सूखे
खुले जगह पर रखते हैं तो ओनियन काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, प्याज। सेकेंड इज मामी दी तांद्रा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश मैंगोज, दैट इज राइप मैंगोज, पके हुए आमों से हम आम पापड़ बनाते हैं। थर्ड इज पल्प कैन बी स्ट्रेन्ड यूजिंग डैश क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स, सो हेयर इट विल बिकम द करेक्ट आंसर मुस्लिन क्लॉथ। जो पल्प है, आम का जो गूदा है, उसमें से फाइबर्स को अलग करने के लिए मसलिन क्लॉथ को काम में लिया जाता है, उससे छाना जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द होम कैन बी प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग दैम इन ए फ्रिज, तो करेक्ट आंसर इज द फ्रिज। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम घर में प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको फ्रिज में रख करके। मेकिंग जैम इज ए वे ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। जैम में आप सभी जैम बड़ा टेस्ट लेके खाते हो, जैम ब्रेड पे चपाती के साथ, उसमें हम जो फ्रूट्स हैं उसमें शुगर ऐड कर देते हैं जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, तो यहाँ शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पे शॉर्ट में आंसर देना है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स इफ ए पर्सन ईट्स स्पॉइल्ड फूड, अगर एक पर्सन स्पॉइल्ड फूड खा लेगा तो क्या होगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी ही विल फॉल सिक, वो बीमार पड़ जाएगा। वाई आर ग्लास जार्स and bottles dried well in the sun before filling them with pickles, ग्लास जार्स को या बॉटल्स को सूरज की रोशनी में रखकर अच्छे से सुखाया जाता है अचार भरने से पहले, क्यों? सो दैट वी आर डूइंग बिकॉज टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द जार, बिकॉज द मॉइस्चर अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे जार से पूरा मॉइस्चर रिमूव किया जा सके, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड शब्द से क्या मतलब है, तो आंसर इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स कीपिंग द फूड सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाना और उसको सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट फूड आइटम्स डू यू प्रिजर्व इन ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में आप कौन कौन से फूड आइटम्स प्रिजर्व करके रखते हैं? सो द करेक्ट आंसर्स विल बी fruits and vegetables, cooked food, chocolates, eggs. You can add, if you are non-vegetarian, you can also add the fishes or something non-veg items also in this list. Then next is make a list of food items that you keep in the freezer. In the freezer. Now here freezer and refrigerator. In the freezer we are keeping ice cream, frozen packaged foods, and those who are non-vegetarian they keeps the meat and fishes and chickens etc. in the freezer. So next question is name some food items in which preservatives are added to make them last long. कुछ ऐसे फूड आइटम्स हमें बताने हैं जिनमें कि हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिससे उन्हें लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके। सो ऑल द पैकेज्ड फूड आइटम्स लाइक चिप्स, केक्स, बिस्किट्स, कुकीज, नमकीन्स, जितना है ना स्नैक्स, सो ऑल दीज आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग द प्रिजर्वेटिव्स। सो स्टूडेंट्स, like, share and subscribe my YouTube channel NCERT Science Mantra. Thanks for watching the video.